ലോകത്തെ വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ മതാന്തര സംവാദങ്ങൾക്ക് ചടുലമായ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ലോകപ്രശസ്തനായ മതതാരതമ്യ പഠനരംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയനായ ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനും പണ്ഡിതനും ആയ സ്വാമി അഗ്നിവേശ് അവറുകളാണ്. Now it's time for the inauguration of this informative session. We have learned that with the special interest of His Highness King Abdullah of Saudi Arabia, there is World Interfaith Forum. Swami Agnivesh is one of the prominent members among that forum. Now I specially welcome our distinguished guest, Swami Agnivesh, to inaugurate this session. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरुआत करता हूँ अल्लाह के नाम से, परमात्मा के, खुदा के, ईश्वर गॉड वाहिगुरु के नाम से, जो बहुत दयालु है, हम सब पर बहुत कृपालु है। फ्रेंड्स, it's really a great honor for me to be invited for this great occasion and to inaugurate this great conference, historic conference, under the banner of Nadwatul Mujahideen. And this movement is for Islahi, for reform. I'm so proud of my great friends here. Dr. Hussain Madavur, we have been working together for many years, and now he is the chairperson of this huge conference. Dr. Salim Malabari from Jeddah, who just now left. Dr. Jacob Wadkancheri, who runs this Nature Life International. He has been my very good friend. Dr. Ahmad Kutti and Maulvi Omar Sulami, Dr. Yahya Khan, who is representing and organizing the youth under this movement, and my sister Khadija Nargis, another sister Shamima Islahiya, Hafiz Rahman Sahab, Dr. Anwar, Alam Kod Leela Krishnan, and so many of our friends sitting here. I want to congratulate the organizers. This is the first day, the inaugural day. From tomorrow onwards, you will see the crowds spilling over the whole ground. Maybe this ground will be small, will not be able to contain all those people who will come from all over Kerala and other parts of India. It's a great event for us to celebrate. This is a celebration. It's not so much for speech making, but to celebrate the unity of all our religions. All our religions, particularly, as you have been told, I am follower of Arya Samaj. I am follower of the Vedas. The first, not in my pocket, I don't know. I follow the Vedas inspired by the great founder of Arya Samaj movement, Swami Dayanand Saraswati. And in the Vedas, it is very clear, absolutely clear, that for the whole universe, there is one Paramatma, one Ishwar, one Allah. We can call Allah by any name, different names, but there cannot be 2 or 3 or 5 or 10 Allah. No way. One Allah, one Ishwar, one Paramatma, one God, maybe by different names, but it has to be one. And today when I see you united here for religion, humanity and renaissance, the message should be loud and clear to all the people all over the world, not only to Muslims, to Hindus, to Christians, to Sikhs, Jains, Buddhists, Baha'i, everybody.
that let us come together on this one issue, that is Tawheed. Tawheed should be the new agenda for the whole of humanity. And we should not compromise on that. Those who are trying to create new gods every day, they should be rejected. Some human beings are being called gods. I don't know how. God can have no form. God is not partial to Hindu or Muslim. Allah is for all. Rahmanir Rahim. So when we say Ekam Sat, Vipra Bahuda Vadanti, it means truth is one, God is one, Allah is one. You may call, wise people call by different names. परमात्मा एक है, अल्लाह एक है. आप विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग कई नामों से पुकार सकते हैं. In Quran, there are 99 names for Allah. That does not mean there are 99 Allahs. No, there is one Allah. And therefore, let us all raise our hands and say, La ilaha illallah. Now you have to say that with me. La ilaha. Say that. La ilaha. La ilaha. La ilaha. So that should be the proclamation for the whole of humanity. This one God concept can unite all of us. Why should we fight among ourselves? How can we tolerate any caste system? Somebody higher, somebody lower. The Hindus have got so many gods. Some of my friends, they go for pilgrimage here, there, everywhere. They are my friends. I ask them, how can you worship the stone god? Patthar ko poochte ho? People are going, 1 crore people went to Vaishno Devi up in the Himalayas. So many thousands go to Amarnath, the god made of snow and ice. Now this is not God worship. This is not Allah worship. We should worship Allah and Allah's creation. Allah's creation is the biggest idol, biggest image. And therefore, if we are worshipping anybody else, then we are insulting Allah. If we are going for pilgrimage to Sabrimala, if we are going to take a dip in the Ganges and thinking that it will wash away all our sins, that is all hoax, that is all superstition. We should inform these people, educate these people, make them realize that if they do not really worship Allah without any intermediary, बीच में कोई एजेंट नहीं होना चाहिए. मेरे और अल्लाह के बीच में डायरेक्ट मेरा संबंध होना चाहिए. बीच में मिडिल मैन की कोई जरूरत नहीं है. अल्लाह का कोई बेटा नहीं होता, अल्लाह का कोई बाप नहीं होता, अल्लाह की कोई बहू नहीं होती. अल्लाह न पैदा होता है न मरता है. We must tell our friends who follow Christianity that Jesus himself says, I am son of God. He was not God himself. But some of my friends in Christianity think that Jesus was incarnation of God. How can Allah have incarnation? How can God or Paramatma have incarnation? Some Hindus believe Rama was the incarnation of God. No, Rama was a human being, great human being. बहुत बड़े इमाम थे वो, इमामे हिंद. इकबाल called Rama इमामे हिंद. Krishna was a great soul, great man. But we cannot call Krishna God. God is something different. Allah is something different. Allah alone has to be worshipped.
इबादत होगी तो होगी केवल और केवल अल्लाह की होगी, दूसरे किसी की इबादत नहीं हो सकती। ये ऐलान आज इस मंच से सारी दुनिया को जाना चाहिए। अल्लाह की शक्ल बना करके तुम उतारोगे और बेंगलोर में बैठा दोगे एक सत्य साईं बाबा को और कहोगे ये आज का अल्लाह है, आज का परमात्मा है, तो ये बहुत बड़ा धोखा होगा। कोई इंसान, कोई मनुष्य या कोई जानवर, कोई अल्लाह के नाम पर पूजा जाए, ये हमें मंजूर नहीं है। अल्लाह सारे कायनात को, सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को, इसलिए वेदों में आया है ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत केन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य सुद्धनम। परमात्मा सृष्टि के कण कण में है, पूरे कायनात के जर्रे जर्रे में है। उसकी इबादत करने का मतलब है हम सच्चाई के रास्ते पर चलें। वी शुड प्रैक्टिस ट्रूथ, वी शुड प्रैक्टिस लव एंड कंपैशन एंड फाइट फॉर जस्टिस। सिंपल। वो काम नहीं करके हम 10 रिचुअल्स करते रहेंगे, 50 पिलग्रिमेज करते रहेंगे, हमारे पापों को माफ कर देगा, तो कोई अल्लाह थानेदार नहीं है रिश्वत लेकर के पापों को माफ कर दे। यू कैन नॉट ब्राइब अल्लाह। उसको रिश्वत दे करके तुम करप्ट करने की कोशिश मत करो। वो खुश नहीं होगा तुम्हारी पूजा करने से, उसका नाम लेने से। अच्छे काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम करोगे तो बुरा फल मिलके रहेगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि उसको बदल सके। मैं समझता हूं दोस्तों, साथियों, नौजवानों, मेरी बहनों, आज मुझे खास खुशी हो रही है। मैं दिल्ली में और मुजफ्फरनगर में और पूरे हिंदुस्तान के और बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूं और वहां पर मुझे हमारी बहनें नहीं मिलती, तो मैं चिढ़ाने के लिए कहता हूं शुरुआत में, ख्वातीनो हजरात, और फिर मैं रुक करके पूछता हूं ख्वातीन कहां हैं? बहन तो है ही नहीं, या हैं तो कहीं पीछे, पर्दे के पीछे। लेकिन आज केरल की धरती पर, इस कोटाकल की धरती पर मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है कि हजारों की संख्या में मेरी बहनें बैठी हैं, और ये बहनें पढ़ी लिखी बहनें हैं। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं। हमें इन बहनों पर फक्र है। मैं समझता हूं कि औरत और मर्द के बीच की जो गैर बराबरी है, यदि हम एक अल्लाह को मानते हैं तो किसी को यह हक नहीं होना चाहिए कि पेट में बच्चा आए तो पता लगाने के लिए डॉक्टर के पास जाओ कि आने वाला बच्चा, होने वाला बच्चा बेटा होगा कि बेटी। और यदि पता लग जाए बेटी है तो दूसरा डॉक्टर तैयार है उसको कच कच करके, बोटी बोटी करके, उसके टुकड़े करके गंदे नाली में बहा देने के लिए, एबॉर्शन करने के लिए। यदि खुदा और अल्लाह के पास से हमको बेटा मिले और बेटी मिले तो हमें बराबर उसका सम्मान करना चाहिए, इस्तकबाल करना चाहिए, और न कि हमें बेटा चाहिए और हमें बेटी नहीं चाहिए, और बेटी हो तो उसको कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फिटिसाइड की शिकार कर देना चाहिए। ये अल्लाह की इबादत के खिलाफ है। आप पूजा करें मंदिर में, नमाज पढ़ें मस्जिद में, और फिर बेटी को पेट में मार डालें, मैं समझता हूं यह अल्लाह का अपमान है। दिस इज एन इंसल्ट टू अल्लाह। इफ यू आर बिलीविंग इन कास्ट सिस्टम, यदि आप अपने पड़ोसी को कहते हो कि तू नीच है, तू अछूत है, यू आर अनटचेबल, यू आर लोअर कास्ट, आई एम हायर कास्ट। I was born in a Brahmin caste in Andhra Pradesh, Srikakulam, in 1939. I am 75 year old now. मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया तो क्या मैं बड़ा हो गया? नो। कोई मेरा भाई, मेरी बहन दलित के घर में पैदा हो गई तो छोटी हो गई? नो। हम सब एक ही अल्लाह की, एक परमात्मा की संतान है। इसलिए जो जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव मानते हैं वो अल्लाह के खिलाफ हैं, परमात्मा के खिलाफ हैं। जो बैठे यहां पर वो भी अपने दिल में झांक करके देखें। इस्लाम ग्रहण कर लेने मात्र से
मुसलमान जाने से जात पात नहीं चली जाती। मुसलमानों में जो शेख और सैयद हैं वो अपने आप को ऊंची जात का मानते हैं, और जो नाई, धोबी, मेहतर, अंसारी उनको छोटा मानते हैं। नमाज पढ़ने के लिए 4 मिनट बराबर खड़े हो जाएंगे अल्लाह की इबादत में, और चप्पल पहन करके नीचे उतरेंगे मस्जिद के नीचे, तो शेख और सैयद अपने रास्ते और वो बेचारा दूसरा गरीब आदमी अपनी गली में अलग रास्ते। ये नहीं होना चाहिए। हम अल्लाह की इबादत के समय जैसे बराबर हैं, ऐसे समाज में हमें बराबर होना है। हमारे रिश्ते खाने पीने के, रोटी और बेटी के बराबर होने चाहिए। जात पात की बीमारी नहीं होनी चाहिए। ये रिफॉर्म है, इसको बदलना है। यदि है तो बीमारी हमारे अंदर। तैयार हैं आप लोग बदलने के लिए? बोलिए। बदलना पड़ेगा। दहेज की बीमारी खत्म करनी पड़ेगी। दहेज की आग में बेटियों को सताना, मारना, काटना बंद होना चाहिए। मैं जानता हूं केरल में नहीं है ये, लेकिन बाकी के हिंदुस्तान में है। और एक बात और कहना चाहता हूं, आई एम श्योर यू विल नॉट माइंड। मैं हिंदुओं को तो कहता हूं कि यह मूर्ति पूजा, बुत परस्ती गलत है। ये मुसलमानों को क्या कहूं? झुंड के झुंड जा रहे हैं मजारों पर, कब्रों की पूजा कर रहे हैं। ये क्या बीमारी आ गई? Why are you worshipping those graveyards? Directly worship your Allah, your Khuda, your Paramatma. करें गैर गर्भुत की पूजा तो काफिर। If others are doing some other form of worship, we call them काफिर। करें गैर गर्भुत की पूजा तो काफिर। जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर। कवाकब में माने करिश्मा तो काफिर। झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर। मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें। परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें। नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं। नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं। इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं। मजारों पे जा जा के मांगे दुआएं। शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं। मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं। न तौहीद में कुछ खलल इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। ये कैसा हुआ इस्लाम? ये खिचड़ी कैसे पका दी तुमने? ये चूचू का मुरब्बा कैसे बना दिया तुमने इस्लाम को? इस्लाम में कोई बुत परस्ती के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की भी। मैं बड़े अदब से कहता हूं, मेरे भाई मेरे बहन वो किसी तरीके से समझ सकें, हम प्यार से उनको समझाएंगे। लेकिन अल्लाह की इबादत जात पात को तोड़ के, हमारी बहनों को बराबरी का दर्जा देकर, और इसके साथ साथ एक खास जरूरत है, और वो खास जरूरत ये है, और केरला के लिए तो सबसे जरूरत है। मैं और हुसैन मदाबूर साहब, हमारे दोस्त डॉक्टर जैकब वटकनचेरी, सब मिलकर के अभी परसों रात को हम लोग इकट्ठे थे वायनाड के लिकर बार के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। शराब को बंद कराना है, अल्कोहलिज्म बंद होना चाहिए, वरना ये केरला, पूरा का पूरा केरला अरब सागर में नहीं डूबेगा, शराब में डूब करके खत्म हो जाएगा। इतना बुरा हाल बना दिया केरल का। So much of alcoholism in Kerala. Kerala people are drinking the most in India. Alcoholism is on the rise. Sharab, sharab, sharab. Wine, alcohol, liquor. Now this is going to spoil your health. And anybody who is an alcoholic, I am told by my friend that 65% of Keralites are alcoholics. 65%, and 20% are addicts, hard addicts. Now what is the future?
Now let us raise a battle cry and call this government of Oman Chandi. Let us tell this government and also the government there of Dr. Manmohan Singh or whoever, at the national level, all alcoholism should be banned and stopped. इसके लिए हमको एक हो जाना चाहिए. पूरे मुल्क में गांधी जी ने कहा था, अंग्रेज के जाने के बाद मैं शराब को मिटा दूंगा. आज गांधी का नाम लेने वाले शराब की दुकान के ठेकेदार बन रहे हैं. ये कहते रेवेन्यू, एक्साइज रेवेन्यू. कोई एक्साइज रेवेन्यू नहीं मिलता. जितना रेवेन्यू मिलता है 100 रुपए, उसकी जगह 124 रुपए खर्च करना पड़ता है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, और दुनिया भर के दूसरी अपराध जो हो रहे हैं, बलात्कार के हो रहे हैं, रेप, मर्डर, एक्सीडेंट, इसको रोकने के लिए 124 रुपए खर्च करते हैं. तो आमदनी कहां हुई? 100 रुपए आमदनी, 124 रुपया खर्चा. ये झूठ है. सरकारों को बंद करना चाहिए. शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए. शराब के ठेके बंद होने चाहिए. शराब का कारखाना बंद होना चाहिए. कुरान शरीफ कहता है ये बुराई नहीं, सारी बुराइयों की जड़ है. उम्मुल खबाइश. जब हम शराब को बंद करेंगे तो थोड़ा मीट को भी कम करना पड़ेगा, मांस को भी कम करना पड़ेगा. केरल में बहुत मीट खा रहे हैं, बहुत ज्यादा. मुझे मडाबूर साहब ने बताया उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई. उन्होंने जैकब साहब से मिलकर के वेजिटेरियन डाइट अपनाया. अब वो हेल्दी हैं. परसों मैंने खाना खाया अब्दुल लतीफ के घर में, वो वेजिटेरियन है. कल मेरा लंच था मुजीब रहमान के घर में, वो वेजिटेरियन है. खालिद साहब, उनकी बेगम नरगिस, उनके घर में मैं रहता हूं और वो मुझको वेजिटेरियन खाना देते हैं. तो मुझे बहुत खुशी होती है केरला में आकर के. यहां मुझे बहुत मुस्लिम मिलते हैं परिवारों में जो पूरी तरह वेजिटेरियन है और वो मांस नहीं खाते. I want to congratulate these friends. इसके साथ ही साथ समाज को बदलने के लिए टेररिज्म के खिलाफ, इस्लाम में कोई टेररिज्म की जगह नहीं हो सकती. इस्लाम का मतलब पीस. इस्लाम मीन्स शांति. जब मैं खड़ा होता हूं तो आपको कहता हूं अस्सलाम वालेकुम, आप बदले में कहते हैं वालेकुम सलाम. आपके लिए शांति हो, आप कहते हैं आपके लिए भी शांति हो. दुनिया में जब भी कोई एक इंसान दूसरे इंसान से मिलता है, मुसलमान खास करके, तो कहता है अस्सलाम वालेकुम, कहता है वालेकुम सलाम. शांति शांति शांति. अमेरिकन मिलते हैं एक दूसरे से तो क्या बोलते हैं? हाय हाय. हाय माने तो कोई मर गया है कि नहीं? हाय हाय मत करो भाई, शांति शांति करो, पीस पीस बोलो. जब हम अपने प्रॉफिट को याद करते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद को, तो हम कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी विथ हिम अपॉन हिम. जब भी हम प्रॉफिट को याद करेंगे तो हम उनके लिए पीस की प्रार्थना करते हैं. कितनी ऊंची बात है. इसको जोड़ दिया टेररिज्म के साथ, इस्लामिक टेररिज्म. ये गलत बात. आज सुबह कन्फेशन हुआ है एक स्वामी का, स्वामी असीमानंद. क्या बोलता है वो कि जो जब समझौता एक्सप्रेस में मारा, बम किया टेररिज्म, उसके पीछे उसका अपना हाथ है. वो कहता है मालेगांव के ब्लास्ट में उसका हाथ है, मक्का मस्जिद में उसका हाथ है. हिज ओन कन्फेशन in a court of law, Swami Asimanand has confessed. It's a big news today. But not just he himself blamed himself only, no. He said, Mohan Bhagwat, who is now all in all of RSS, he was also involved in these terrorist activities. He also blessed. इंद्रेश कुमार, उनका नाम लिया है उसने अपने कन्फेशन में. अब इंद्रेश कुमार हिंदू है, मोहन भागवत हिंदू है,
स्वामी असीमानंद हिंदू है, इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि सारे हिंदू टेररिस्ट हैं, सारे हिंदू दहशतगर्द हैं, ये नहीं हो सकता। कुछ चंद हिंदू टेररिस्ट हो सकते हैं, कुछ मुस्लिम टेररिस्ट हो सकते हैं, कुछ सिख हो सकते हैं, लेकिन उनके रिलीजन को बीच में ला करके उसको कोई कलर देने की जरूरत नहीं है। इस्लाम का मतलब शांति है, पीस है। और इसलिए दोस्तों और साथियों, आओ हम और आप मिलकर के हाथ मिलाएं और कहें हम शांति के लिए, अमन के लिए, और अमन बिना जस्टिस इंसाफ के नहीं होगा। मैं अभी मुजफ्फरनगर 8 बार होकर के आया हूं, वहां मेरे मुस्लिम भाई मारे गए हैं, कुछ हिंदू भाई भी मारे गए हैं। मैं सबके लिए इंसाफ की मांग कर रहा हूं। मुजफ्फरनगर में इंसाफ नहीं होगा तो शांति भी नहीं होगी। जिसने कत्ल किए हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कत्ल करने वाले की जात और बिरादरी और मजहब को बीच में नहीं लाना चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे कहूंगा, आइए हम लोग एक नॉन वायलेंट जिहाद की तैयारी करें। जिहाद बुरी चीज नहीं है, बुराई से लड़ना जिहाद है। जात पात से लड़ना, शराबखोरी से लड़ना, ऊंच नीच के भेदभाव से लड़ना, ये सबसे बड़ा जिहाद है। हम भी जिहादी हैं, मैं भी जिहादी हूं। हम सब मिलकर के नॉन वायलेंट जिहादी समाज को बदलने के लिए हम लोग जिहाद करें, जद्दोजहद करें, और तब जाकर के हम एक नया समाज बनाएंगे। नवोत्थान तब होगा, रेनेसां तब होगा, मानवता एक परिवार वसुधैव कुटुंबकम बनेगा। और इस प्रकार हमारा ये जो विशाल आज का आयोजन है, जो 3 दिन चलेगा, मुझे विश्वास है सारी दुनिया को एक नया पैगाम देगा, शांति का, अमन का, मानवता का, इंसानियत का। और इस प्रकार हम लोग कदम ब कदम शांति की तरफ, अमन की तरफ, तरक्की की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।